तो लिखा है इसको कुछ चुका हूँ इसको लिख दिया था मैंने Good morning to all. I, Dr. Yogesh Agarwal, Professor on behalf of Mechanical Engineering Department, welcome to respected Director Sir, Deputy Director Madam, Dean Sir, all HODs of the department, faculty and the staff member. I also welcome to the today's seminar, renowned and the well-known person, Dr. Nishit Dubey Sir, Professor NITTR Bhopal. Before going to start today morning session of seminar, I would like invite to respected director sir to say few words for today events which is held under IQAC and EDC. Sir, please. Thank you, Yogesh sir, and good morning everybody, and our special guest Dr. Nitish Dubey sir, Professor NITTR Bhopal. I am very happy that Dr. Agarwal has taken this initiative for this program, which is of great concern nowadays. Youth entrepreneurship has become a topic of interest for research scholars and also a subject of major concern for the government. While youth entrepreneurship is an underexplored field, the market scene is changing now. Entrepreneurship is seen as a channel for the talents of many highly educated young people to explore their potential and engage their businesses. Entrepreneurship is more than just an engine of economic growth. It is also a fact that makes communities more vibrant, inclusive, and secure. The skills that are required to run a successful business successfully is developed among aspiring entrepreneurs through such programs. I once again congratulate Dr. Agrawal for arranging this program, and I'm sure that this program will be very beneficial for all of us, and especially our young budding engineers. I, on the behalf of the entire group, welcome Dr. Nitish Dubey, and I also would like to thank him for sparing his valuable time. Thank you. Thank you to director sir, given the valuable time. Will not so much time. I would like invite to Dr. Nishit Dubey sir for start the session. Sir, please.
सर म्यूट सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लें सर प्लीज सर। Yes, I'm sir. sorry, friends. Sorry. Okay, I hope I'm audible. Okay, friends, at the outset, let me first thank you, Director Vikas Page, sir, who has given such an outstanding remark. And sir, namaskar to you. And also to Yogesh, sir, all faculty, and my dear young friends. Friends, as sir has already told, that this is the time, this is the booming time for entrepreneurship. And sir has successively arranged this opportunity with Yogesh, sir. I will be talking to you for around 20-25 minutes and we'll have certain question answer session. And friends, let me tell you, it will not be only a simple talk. I have few things with me which I will provide to you in between. There are many good opportunities and one such opportunity is on Monday 22nd. So right now there is a suspense, but in my deliberation, I would be talking about that too. And if anybody of you is interested, and if you want to become an entrepreneur, then probably you can encash that opportunity. Okay, friends. So I think it's time to start. And I'll first try to share my screen. Please help me when you see my screen. Just a minute. Is my screen visible, sir? Yes, sir. Okay. So do you see my name, Dr. Nishit Dubey? Yes, sir. On the screen? Yes, sir. Okay. And I hope I am audible. Yes, sir. And it is clear. Definitely. Okay, friends. So today we have a very big event, a webinar on entrepreneurship awareness. And I am there with NITR Bhopal, National Institute of Technical Teachers Training and Research. I am professor over there and heading the Department of Technical and Vocational Education. So, Yogesh ji, could I just know how many of us have joined over here? So 30 pupils. 30 pupils. Good. Okay, that is a good number. That is a very good number. And I hope few would be joining. But anyway, friends, I am putting a picture over here and the question is already there. Do you know her? Please write her name in chat box. Okay. So, yeah, this is the picture, photograph, and I want few of you to name this young girl. Will the chat be visible to me, Yogesh sir? Yes, sir. Yes, sir. Visual, sir. Okay. Let me see. Okay, friends. Anyway. Yes, I want few answers. Are they coming in? Probably you don't know. Okay, friends. Okay. Thanks, madam. Dekhiye, one has to attempt. That is the spirit. One may be wrong and one may be right also. So an entrepreneur is a person who takes the risk. So all credit goes to you. Maybe you tried to attempt, but she is Divya Gokalnath, and as you rightly said, she is the co-founder of Byju's. Yes, right. So just read about, at the age of 33, the Bangalore-based Gokulnath had a net worth of rupees 1,800 crores. Armed with the BTech from RV College of Engineering, Gokulnath has been instrumental in ensuring Byju's India's leading edtech company. You all know about it. So friends, first of all, this is a booming time. This is a booming time for entrepreneurship. And we see one such entrepreneur, Divya Gokulnath, who she has created history. So friends, this is the starting point and probably we can do wonders over here. She also passed from a similar engineering college as you are doing. Okay, so you can take it. Anyway,
Okay, now I am sure you know him. Please write his name in the chat box. Okay, and there's a hint also. Oyo, yes, you can give the answers on your mic. Okay, yes. कौन है भाई? बताएं. Yes, some answers are coming. Fine. Okay, he is none other than Ritesh Agarwal, founder and CEO of Oyo Rooms. Yes, madam. Very right. Okay, so you got the second attempt. Okay, can I know your name? Can I know your name? Your name. Anyway, चलिए अभी बाद में बताइए. So, my dear friends, now आपको ओयो मालूम है, आपको रितेश अग्रवाल, स्नेहा, स्नेहा सोनी मैडम. ओके स्नेहा जी राइट आपका माइक्रोफोन में थोड़ा प्रॉब्लम है, पर एनीवे वी गॉट योर नेम स्नेहा. सर योगेश जी थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा चैट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो यू मे गिव मी सम आंसर्स, बट एनीवे थैंक यू फॉर दैट योगेश जी. सो स्नेहा मैडम, आपने दूसरा आंसर बहुत सही दिया, पर देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन कि मैंने रितेश का यहाँ पर पोस्ट किया है पिक्चर. Not only because he is such a big startup co-founder. इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रितेश अग्रवाल ने एक सक्सेसिव अटेम्प्ट्स किए. पहला अटेम्प्ट किया, उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली. सेकंड अटेम्प्ट किया, उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली. बट रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, एंटरप्रेन्योर, पहला मैंने आपको बताया, ही टेक्स द रिस्क. और दूसरी बात होती है, ही मे सक्सीड और ही मे फेल, बट इफ ही फेल्स दैट इज अ लर्निंग लेसन फ्रॉम हिम. हम बहुत से लोग जो हमारे दूसरे एजुकेशन के बात कर लें, अदर फील्ड्स में बात कर लें, हमको एक बार हार मिलती है, हमको एक बार नेगेटिव अप्रोच मिलता है, तो वी लेट डाउन, हम दोबारा प्रयास नहीं करते. और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं करता. इवन फेलियर इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर हिम. और देखिए आज रितेश ने कहाँ ओयो खड़ा कर दिया. तो उनका फर्स्ट वेंचर जो था एयरबीएनबी था, जिसमें उनको मिक्स्ड सक्सेस मिली थी. घबराए नहीं, पर उन्होंने आगे रखा. परसीवियरेंस, दैट इज. सो फ्रेंड्स, ये दूसरी क्वालिटी आप सब में होना चाहिए. कोई बात नहीं. अब ये तीसरा पिक्चर बताइए. अब एक और पिक्चर आ रहा है और इस बार फिर स्नेहा मैडम बताएंगी, और देखें दूसरे लोग भी बता सकते हैं क्या. यस, एनी आइडिया हु इज शी? प्लीज राइट हर नेम इन द चैट बॉक्स, प्लीज बताएं. यस, मैं ये बता देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि आप लोगों का टारगेट ग्रुप है, जिन वस्तुओं की आप लोगों को जरूरत पड़ती है उसी फील्ड में है ये. एनी आइडिया? स्नेहा मैडम, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. चलिए, कोई बात नहीं. देखिए, राधिका अग्रवाल, को फाउंडर ऑफ शॉप क्लूज. फ्रेंड्स, हम सब यूथ हैं, मतलब आप लोग मुझे छोड़ के, तो आप लोग जो यूथ हैं, तो नो मैडम, ये शॉप क्लूज से हैं. या नायका का भी सिमिलर स्टोरी है. मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद माइक्रोफोन में आपका कुछ प्रॉब्लम है, तो वी कैन नॉट हियर यू वेल. तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आपको. ओके, तो राधिका अग्रवाल, को फाउंडर ऑफ शॉप क्लूज. और देखिए, ये जो राधिका अग्रवाल हैं, तो ये भी कहीं एक्सपीरियंस ले रही थी, बट ही फाउंड दैट यूथ का अपना अलग स्टाइल होता है. उसको अपने गारमेंट्स चाहिए, उनको अपने आर्टिफैक्ट्स चाहिए, और इसको कंसेप्ट लेके जो एक इमर्जिंग यूथ हमारे यहाँ आ रहा है, एंड वी विल बी गोइंग टू बी द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. चाइना को भी हम सरपास कर जाएंगे, पॉपुलेशन में नहीं, यूथ में. तो ऐसे सारे समय आप देखिए, उन्होंने एक नया मार्केट देखा और शॉप क्लूज उन्होंने स्टार्ट किया. सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा. अब देखिए, एक अटेम्प्ट और है, चौथा वाला सिंपल है. मैं आप सबको मौका दे रहा हूं कि आप उनका नाम बताएं. यस,
ओके और देखिए हिंट भी पहले दे रहा हूं कि मोस्ट ऑफ अस फील हंग्री, शायद कॉलेज में है, लंबी लंबी क्लासेस चल रही हैं या घर पे हैं, अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो बताइए हु इज ही? यस, और इनका नाम भी आना चाहिए दोस्तों. लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव. यस, आ रहे हैं. ओके ओके. Yes, friends. Yes, he is founder and CEO of Swiggy, Shri Harsh Majety. Okay, and many a times आपने Swiggy को use किया होगा या Zomato आपने use किया होगा. So he is Shri Harsh Majety. Majety net worth 10 rupees 1,400 crores. Okay, तो आप देखिए लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है. Majety has no restaurant. Majety has no vehicles, but then also he has a wonderful innovative idea. Logistics. Using other resources, he has wonderfully connected different dots. तो फ्रेंड्स हमको आपसे ही ऐसे इनोवेशन चाहिए हैं. एंड लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहां एंटरप्रेन्योरशिप कूट कूट के भरी हुई है. योर लीडर इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ द स्टेट एंड इंडिया. ऑल्सो all your heads of the department and directors and the faculty, they have that in spirit, क्योंकि वो अपने हेड को देखते हैं, अपने इंस्टीट्यूशनल हेड को देखते हैं, चेयरमैन को देखते हैं, and everybody is geared up. So friends, आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप के अबंडेंट चांसेस हैं. और देखिए योगेश सर और डायरेक्टर सर आपको मिलकर ये इवेंट भी दे रहे हैं. अब ये तो इंस्टीट्यूट हो गया. अब मैंने आपको अभी कंट्री का प्रोफाइल बताया है. आई हैव टोल्ड यू 4 persons who have rose to many crores in a very short time. So by this I mean to say this is the right time, booming time for entrepreneurship. अपने करियर में आप एंटरप्रेन्योर को फर्स्ट प्रेफरेंस दें, सेकंड प्रेफरेंस आप जॉब को दे दें. Why? जॉब तो हमेशा चलेंगे 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, बट दिस इज द राइट टाइम व्हेन द मार्केट बूमिंग. आपको बताया मैंने हमारा यूथ. ऑल्सो इकोनॉमी भी देखिए, हम इकोनॉमी बढ़ रही है. वी वांट टू बी इन द फर्स्ट 5 मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में हम आना चाह रहे हैं. फिर साथ ही साथ इकोनॉमी मोस्ट द लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी वांट टू बी द 5th इकोनॉमी, और हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं. और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है. देयर आर मेनी स्कीम्स, देयर आर मेनी इंसेंटिव्स व्हिच दे आर प्रोवाइडिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, why should you not avail this opportunity? जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं करेगा वो पछताएगा. So you have the right time. Okay friends, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, और अभी तक अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, बहुत से लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लास्ट चांस आपको दे रहा हूं. ये ट्रम्प चांस है. अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे. Who is this guess? Who is this guess? ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये किसका पिक्चर है? प्लीज राइट हिज नेम इन द चैट बॉक्स. ओके, सो आप बताइए ये किसका फोटो को दिख रहा है आपको यहाँ पे, किसका पिक्चर है? कैन एनीबडी टेल मी? यस, चैट बॉक्स में नाम लिखिए. स्नेहा मैडम, सर फोटो किसका पिक्चर? फोटो आया नहीं है. ओ अच्छा, किसने? देखिए फोटो थोड़ा सा ब्लर्ड है. ओके, बाकी फोटो क्लियर थे तो आपको एकदम से दिख गए हैं. दिस इज ब्लर्ड. तो थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करिए. क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? कैन यू सी दी क्वेश्चन मार्क? बस क्वेश्चन मार्क दिख रहा है सर. और तो बस क्वेश्चन मार्क पे कंसंट्रेट कीजिए, एंड कंसंट्रेट फॉर 5 to 7 seconds, और आपको पिक्चर दिखना शुरू होगा. So my dear friends, my dear faculty, question mark पे concentrate कीजिए and count 1, 2, 3, 4. अरे वाह, शाबाश. कौन है भैया? नाम भी बताइए, नाम बताइए. सर नीरज टेकाम. वाह नीरज, 100 out of 100, 100 out of 100. तुमने अपना यहाँ फोटो देख लिया, और इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है कि तुम ये कह रहे हो कि सर जब आप अगला लेक्चर देंगे, जब आप
जब आप अगला लेक्चर देंगे तो इस जगह मेरी फोटोग्राफ होगी. Very nice. Friends, I request you to mute your. Thank you, microphones. Please mute your microphones. Yeah, okay. I request you to mute your microphones. योगेश जी, म्यूट कर योगेश जी, आपके पास पावर है म्यूट करने के, आप उनको म्यूट कर दें. ओके ओके. सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना चाह रहा था. और अब नाउ दिस इज द टाइम व्हेन ईच वन ऑफ यू, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, अपना फोटोग्राफ यहाँ देखें. देखिए दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ी चीज है तो दैट इज ड्रीमिंग. आप उसको ड्रीमिंग बोले, मैं सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं. विजन बोल दें तो मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं. पर वेनी टाइम्स व्हेन वी से विजन, तो हम लोग सोचते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई, वी कांट डू इट. Each one of us can do it. We can become. दोस्तों, सबकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अलग अलग होती है. हर कोई बड़े बड़े अंबानीज या टाटाज एक दिन या कुछ सालों में नहीं होते. ओके, इट इज अ जर्नी और धीरे धीरे हमको आगे होना है. लेकिन सबसे पहले अपना फोटोग्राफ वहां पर देखें. यस, आई कैन बिकम. सो यस, मुझे और भी नाम दिख रहे हैं. आप लोग देखिए, मैं चाह रहा हूं ऑल ऑफ यू प्लीज राइट योर नेम इन दी चैट बॉक्स एंड सेंड इट टू मी. हर किसी को वहां दिखना चाहिए आप अपने आप. आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकंड्स. आप सब अपने नाम इसके अंदर डालिए, एक कमिटमेंट अपना डालिए, तब आप इसको देख पाएंगे. ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकंड्स. अपना नाम फटाफट डालिए. आई वांट टू सी इट इन द चैट बॉक्स. ओके, कुछ आना शुरू हो गए हैं. वेरी नाइस. एंड नाउ आई थिंक वी आर गियरिंग अप. सो दोस्तों, जैसा मैं आपको बोल रहा था, पहली चीज है चार्ज अप. ओके, सो पहली चीज है चार्ज अप. एक छोटा सा वीडियो. कैन यू लिसन प्रॉपरली? यस. सर साउंड की प्रॉब्लम आ रही शायद, साउंड नहीं आ रहा उसका. अच्छा, यस सर. बाकी तो पिक्चर तो क्लियर है, वीडियो क्लियर है. साउंड ओके ओके. मैं कोशिश करता हूँ. Yes, कोशिश करता हूँ. सॉरी, एक मिनट. सर, ये वॉइस कहाँ से आएगा, थोड़ा हेल्प करेंगे मुझे? सर, आप जब आप शेयर कर रहे हैं तब शेयर में एक ऑप्शन आता है कि शेयर विद ट्विटर ऑडियो, तो आप उसको यूज कीजिए, फिर से शेयर कीजिए. अच्छा, ओके, जस्ट अ मिनट. अभी शेयर साउंड मैंने किया है. मुझे बताइए. One act of kindness can change a person's यस सर, destiny. आवाज आने लगी सर. Hearts and other organs. We at Green Soul believe in donating walks. Globally, more than 350 million pairs of shoes end up in landfills each year. While as per the UNESCO and WHO report 2013, 1.5 billion people currently do not have footwear, and millions are dying due to diseases contracted through unprotected feet. Green Soul refurbishes discarded shoes to comfortable footwear and provides them to the people in need. Once the shoes reach our manufacturing unit, they're sorted out, are disassembled, whereby the sole is used to make the base of slippers. The uppers are used to make slipper straps, and the laces are used to pack the footwear ready for donation. It all started in December 2013 when Ramesh and I, being athletes, we used to discard 3 to 4 pairs of expensive sports shoes each year.
We were stuck with this problem, and months of brainstorming and several failed attempts led us to the idea of Green Soul. Today we have donated walks by providing footwear to more than 10,000 people in need across the villages in India, saved several tons of carbon emissions by keeping discarded shoes out of landfills, and have also given employment in the process. So to support us in our journey of putting recycled footwear on every foot, as an individual, you can give us your discarded shoes or buy or donate a pair of Green Soul. And as a corporate, you can give us a chance to become your CSR partner. We at Green Soul look forward for that one act of kindness, donating walks. Friends, this was Shreyans and Ramesh. Okay, they were students like you. तो देखिए होता क्या है कि बहुत सी बार हम बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर तो बनना है, पर व्हाट टू डू and what we see, we try to find out usual things like shoes, like fan, like tube light, washing machines, and so on. But friends, okay, no problem. You can go with it. But here is a very interesting aspect, which is a new phenomena, and that is known as social entrepreneurship. Social entrepreneurship. देखिए क्या किया, श्रेयांश और रमेश बोथ वर एथलीट्स एंड दे फाउंड के शूज लेके आते हैं और उनके जो अपर होते हैं जनरली दे गेट बैट, बट सोल्स अच्छे होते हैं विच कैन बी रीयूज्ड. सिमिलरली सोसाइटी का उन्होंने जो प्रॉब्लम बताया कि दैट पार्ट विच इज अनप्रिविलेज्ड एंड प्रोबेबली दे कैन नॉट हैव चप्पल्स, इवन चप्पल्स और सैंडल्स. So they try to meet that need of the society through a unique idea. They collected the souls और उसको refurbish किया और वो उन्होंने उसको free of charge दिया. अब दोस्तों देखिए, when you go for a, please mute your Maya. Thank you. So क्या होता है देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट बता रहा हूं. जब आप एक सोसाइटी के लिए जब आगे काम करने जाते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स मिल जाते हैं. इसके पीछे अगर आपने देखा होगा, इसकी लास्ट वाली स्लाइड थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UNO एंड मेनी कंपनीज दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंस under corporate social responsibility. So if you do a good job with good intention, friends, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत से एंटरप्रेन्योर ये सोचते हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पैसा कमाने के लिए आना है. That is a real problem, my dear friends. जो पैसा कमाने के लिए आगे आता है वो सक्सेस तो हो सकता है बट शॉर्ट समय के लिए, और आगे पीछे ही लैंड्स इन प्रॉब्लम. एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास पैशन होता है अपने आइडिया को सोसाइटी में पहुंचाने के लिए. ही इज नॉट गोइंग फॉर मनी एज हिज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. मनी एसेंशियल है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर उसका पहला पैशन ये होता है कि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व करूंगा. और कंटिन्यूअसली बाय एंड बाय वो इतने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करता है कि सोसाइटी उसको एंडोर्स करती है और फिर प्रॉफिट्स आना शुरू होते हैं और अबंडेंट प्रॉफिट्स आना शुरू होते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले पैसे के पीछे भागता है ही मे हैव अ प्रॉब्लम लेटर, बट जो अपने सर्विसेज के लिए जा रहा है, जो अपने आइडिया के लिए जा रहा है, जो अपने सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहा है, उसके साथ कस्टमर्स, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सब उसके साथ हैं और उसको आगे बढ़ने का मौका देते हैं. एंड यू सी कि कितने सारे यहाँ पे मीडिया पार्टनर्स भी हैं जो श्रेयांश और रमेश को सपोर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज वन न्यू आइडिया जो मैं आज आपको देना चाह रहा हूं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और ग्रीन सोल का बहुत अच्छा हमने एग्जांपल देखा. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड मेनी ऑफ यू कैन हैव सिमिलर आइडियाज कि हमारे पास शूज नहीं पर और क्या है, एंड प्रोबेबली यू कैन स्टार्ट विद दैट. ओके, सो फ्रेंड्स, चार्ज अप हो गए. व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट? आपके पास हो सकता है
कुछ भी ऐसी कोई पुरानी चीज हो, शायद आपको लगता है कि कुछ आपके पास स्पोर्ट्स का सामान है ना, इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, बुक्स पड़ी हुई हैं, वॉट एवर इट मे बी, बट यू कैन थिंक ऑफ दैट। ओके, सो दोस्तों, सबसे पहले मैं लास्ट स्लाइड पे, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट। तो जनरली क्या होता है, हमारे मन में झिझक होती है, हमारे मन में डर होता है कि वी कैन फेल। फ्रेंड्स, रिमेंबर, you do not fail until you stop trying। दोस्तों, हर चीज पहली बार में नहीं मिलती है, ये बात मान के चलिए। और आप तो इंजीनियरिंग के साइंस के स्टूडेंट हैं, many of you, so you know mathematics and probability। so probability में चांसेस तो रहते हैं, लेकिन जितने भी, अभी मैंने एग्जांपल आपको रितेश का बताया था, रितेश अग्रवाल, एयरबीएनबी स्टार्ट किया और उतनी सफलता नहीं मिली। So he was not let down, उसको लर्निंग एक्सपीरियंस लिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको शुरुआत करनी है। अब पीस ऑफ एडवाइस, आपके पास दो तरीके हो सकते हैं शुरू करने के। आप 1000 रुपए से शुरू करें, रिमेंबर आपको आश्चर्य लगेगा पर मैं कह रहा हूं, आप 1000 रुपए से शुरू करें, और दूसरा अल्टरनेट ये है कि 10 लाख रुपए से शुरू करें। देखिए, चांसेस ये हैं, 10 लाख रुपए से आपने शुरू किया और अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो प्रोबेबली, मतलब फेलियर हो गया, तो आप दोबारा कभी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करेंगे। सो जो हिस्ट्री है, जो डेटा है, वो ये कहता है कि जो छोटे छोटे लर्निंग एक्सपीरियंस हैं, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम एज स्मॉल एज ₹1000। आप बोलेंगे 1000 में क्या होता है? कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ अपना विजिटिंग कार्ड बनाना है, प्रिंट करवाना है, एक बिल बुक बनानी है, सिंपल सी बात है। यू कैन टेक अप ओनली जस्ट बुकिंग जॉब। सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू इट, वो प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, दे गो टू ऑफिसेज एंड अदर प्लेसेज और बोलते हैं सर आपका लेटर हेड प्रिंट कराना है क्या, आपके विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराने है क्या, आपके कैलेंडर प्रिंट कराने क्या है। दे टेक द ऑर्डर and they go to existing press, उनसे पूरा का पूरा जॉब ऑर्डर कराते हैं and they supply it। so virtually they have no equipment, no investment, और वो सिर्फ एक प्रकार से मार्केटिंग का काम या सप्लाई देने का काम कर रहे हैं। बट दोस्तों, इतना आपको उसमें नॉलेज मिलेगा, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू कन्विंस अदर पर्सन फॉर योर प्रोडक्ट, नेगोशिएशन कैसे करना है, और उसके ऑर्डर लेने के बाद डिलीवरी प्रोसेस क्या है। एंड फ्रेंड्स, यही धीरे 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 हमको आगे बढ़ता है। सो इट इज सजेस्टेड, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने परमिट कर दिया है कि स्टूडेंट्स एंड माय डियर फैकल्टी, जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, ये भी सुन लें, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, दे कैन स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप while they are studying or while they are in job। और फ्रेंड्स, मैं ये सभी दूर के लिए है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आपको गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है कि इंस्टीट्यूट लेवल पे आप एक पॉलिसी बना लीजिए, उस पॉलिसी की गाइडलाइन भी है। और सिर्फ पॉलिसी दोस्तों बोलने भर की नहीं है। अगर स्टूडेंट के लिए मान लीजिए अटेंडेंस उसकी कम हो सकती है क्योंकि उसको वहां एफर्ट लगाना है, तो अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है तो उसका कंपनसेशन मिलेगा। अगर उसकी स्टार्टअप थोड़ा चल गया, एंटरप्राइज थोड़ा चल गया या चलने वाला है, उसको एक सेमेस्टर ड्रॉप चाहिए या एक ईयर ड्रॉप चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट एक सेमेस्टर का, एक ईयर का उसको ड्रॉप दे सकता है, सो दैट वो अच्छे से अपना, स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, वो अपना एंटरप्राइज को स्टार्ट कर सके। और फ्रेंड्स, एक और बात कही उन्होंने कि अगर आप हॉस्टल में है ना, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हॉस्टल में हैं, वो ये फेस करते हैं कि साहब अब मैं कौन सा एड्रेस दूं, मैं घर का एड्रेस तो दे नहीं सकता, आई लिव अ हॉस्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये भी परमिट कर दिया है कि आप हॉस्टल का एड्रेस से रजिस्टर कर सकते हैं अपने एंटरप्राइज को। सो फ्रेंड्स, मैं बोल रहा था बूमिंग टाइम है, मत चूको चौहान, ये हमें एंटरप्रेन्योर बनना ही है, शायद ऐसा दोबारा मौका नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, इनोवेशन, देखिए इनोवेशन इज अ वेरी वेरी I should say not very, but
an important requirement of entrepreneurship. होना ही चाहिए, essential, okay, innovation. So, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लेते हैं उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं। क्यों? क्योंकि आज तो उन्होंने इनोवेशन वाला काम किया है, आगे जाके यही एंटरप्रेन्योर बनेंगे। फ्रेंड्स, आप सब गियर अप हो जाइए, जिसको अपना इनोवेशन करने के लिए, जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। पर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इनोवेटिव काम करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और नहीं आपको बनना एंटरप्रेन्योर, तो आप अपना इनोवेशन किसी को सेल आउट कर सकते हैं एंड यू कैन हैव हैंडसम अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। सो इस हमको आगे बढ़ना है। तो पंच लाइन आप देख रहे हैं, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट, प्रोबेबली इट इज फियर टू फेल। वही आगे बढ़ता है जो काम करता है और काम करने के बाद फिर भी उसको छोड़ता नहीं है। सो कीप ट्राइंग फ्रेंड्स। Sir, sorry Okay. for disturbance. So what is your dream? Which? Only Sir, sir, please 1 go minute. Only 1 minute is remaining, sir. Sir, can you hear me? I'm sorry. Okay, I'm sorry. No. What is your dream? Which enterprise do you want to start? So friends, okay, यहाँ पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो मैंने आपसे ये बोला था, मैंने आपको ये बताया था कि जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि मंडे से जो हमारा इंस्टीट्यूट जो है NITTR, वहाँ पर हम आपके लिए जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है। ओके, तो मैं योगेश सर के पास लिंक भेजूंगा जो आपको पसंद हो जाएगा। वो लिंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। आज अप्लाई करें, कल आप